name is Vivek Tiwari, and today we will be going to study Class 7. Class 7 NCRE Chapter 2, which is New Kings and Kingdoms. Now, before this chapter starts, let me tell you the background. So, our timeline of medieval India starts at 750. So this chapter is going to tell us about the period from 750 to 1200 BC. This is called as early medieval period. This time what happened? What happened that the earlier the kings used to hire some mansabdars or subedars. Subedars they used to hire. Now what happened with time? The subedars became powerful and soon became independent because the king was dependent on them to money for money. And due to this, the political fragmentation, so-called political fragmentation, again happened, and here came up a new map. Now, so this region is of Gurjar Pratihars. Here are the Rashtrakuts. Here is Chola Empire in the came up in early, let's say 90s, early 900s, or early 10th century. Now, this is a simple map. Before starting any chapter, we shall do the mapping. So this is the region of Pals, this is the region of Gurjar Pratihars, and this is the region of Rashtrakutas. Now, now, as Gurjar Pratihars are this in this area, they wanted their they wanted their control over Kannauj. So if you have a close look at the map, this is Kannauj. Now here are the Gurjar Pratihars, here are the Pal, and from down the Narmada are Rashtrakud. So they did the tripartite struggle. So this struggle was called the tripartite struggle for Kannauj. Now let's start reading this chapter. Emergence of new empires. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as the subordinates or samants. They were expected to bring gifts for the king or overlords, be present at the courts, and provide them with military support. As Samant gained power and wealth, they declared themselves as to be Mahasamant, as I told you, and soon they will free themselves. As we read this chapter, they will try to gain independence. Now, Mahamandaleshwar, the great lord of a circle or region, and so on. Sometimes in they asserted their independence from the overlords, as told. One such instance was that of Rajputs in Deccan. जो राजपूत थे वो एक्चुअली पंडित थे. अब इन लोग ने क्या किया था कि ये लोग सामंत थे, यानी कि इन्हें भी राजा ने लैंड प्रोवाइड की थी. तो इन लोग क्या हुआ, तो इसके पहले जो एम्पायर थी, कौन सी एम्पायर थी, पल्लव एम्पायर थी यहाँ. वो उसका जब पॉलिटिकल रिफ्रेगमेंटेशन हुआ, जब उसे पड़ोसी राजा ने हराया, तो वो उसकी उसकी सेना मर गई. तो उसकी जगह इन लोगों ने क्या किया, अपना एम्पायर खड़ा कर दिया. दे रिप्लेस्ड पल्लवास who were defeated by Cholkyas. Now,
Initially, they were subordinate of Chalukyas of Karnataka in the middle 8th century. धंती दुर्गा, आपको इसका नाम याद करना पड़ेगा। धंती दुर्गा कौन है ये उनका फाउंडर है। कौन है ये उनका फाउंडर। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं भी। हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर, तो आपको बोलना होगा दंती दुर्गा। दंती दुर्गा इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर ना। वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रकूट चीफ था, चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू कर दिया, रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भ, द गोल्डन वॉब। When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of this sacrificer as Kshatriya, even if he was not one by the birth. ये लोग ब्राह्मण थे, तो इसे अब लोग लोग क्वेश्चन करने लगे कि एक ब्राह्मण राजा कैसे हो सकता है। तो इन लोग ने अपना तो इन लोग ने एक वो रिचुअल कराई जो है हिरण्यगर्भ। क्या है हिरण्यगर्भ ना। ना, let's please read the next let's read the next paragraph. In other cases, many from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba Mayur Sharman and the Gurjar Pratihar Harishchandra were Brahmins who came up with traditional professions and took up arms, successfully establishing kingdoms in kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. अब जो कदम्बा था, कदम्बा का एक एम्पायर था, उसमें किसने ये किया था, तो मयूर शर्म ने किया था। और बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की, तो इनका फाउंडर था हरिचंद्र। ये आपको याद करना है। और ये सारे ब्राह्मण थे। गुर्जर प्रतिहार का था राजस्थान में, कदम कदम का था कर्नाटक में ना। Many of these new kings adopted sounding titles. Many of these new kings adopted high sounding titles, such as Maharaja Dhiraj, Great King, Overlord of Kings। इसका मतलब होता है तिरुभुवना एंड चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। However, spite of such claims, ये ये लोग ऐसे क्लेम्स करते रहते थे। दिस वॉज द टाइम ऑफ क्लेम्स। और ये लोग खुद को बहुत सारे टाइटल्स देते थे, बड़े बड़े, लेकिन एक्चुअली होता कुछ और था। They often shared powers with the Samants, as well as associations of peasants, traders and Brahmins. अब इन सबका एसोसिएशन बन चुका था। ये आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे। चैप्टर 6-7 में ये आपको पढ़ाया जाएगा इनके एसोसिएशन के बारे में। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, ca- cattle cattle keepers, artisans, who were often persuaded and compelled to surrender a part they produced. Sometimes they claimed as rent due to a lord who asserted he owned the land. Revenue was also from traders। मतलब ये समझिए, ये आपका इंसान है, ये नहीं, ये आपकी एक मिनट, ये आपका इंडियन मैप है, ठीक। अब ये आपका अरब वाला रीजन है, मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा। अब क्या हुआ, यहाँ से जो है एक ट्रेडर आया। कौन आया, एक ट्रेडर। कहाँ आया, इंडिया में आया। कौन से रीजन में, वो आके रुक गया राजस्थान में।
नहीं तो कोई भी रीजन पे। अब क्या होता था, राजा जो थे, यहाँ 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 कहीं भी रुक गया, तो राजा बोलेंगे तुम यहाँ आए हो, कुछ तो राजा को देना पड़ेगा। तो अब क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो के राजा लोग कहते थे जो तुम प्रोड्यूस करते हो वही दे दो। तो ऐसे करके राजाओं ने बहुत चीजें ट्रेडर्स से ली थी। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन हिस्ट्री, तो आपको इसके बहुत सारे पहलू मिलेंगे। द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया इज रिलेटेड टू द पॉलिटी ऑफ इंडिया। नाउ, the inscriptions of Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms of different kinds of taxes. 400 अलग अलग तरह के टैक्सेस हुआ करते थे। Most frequently mentioned tax is vetti. Vetti, not taken in cash but in form of forced labor, and kadamai, or land revenue. There were also taxes on touching the house, use of ladder to climb palm trees, in case on succession to family property. अब अब जैसे कि ये बता रहा है, तुम लोगों ने हर चीज पे टैक्स लगाई थी। और जैसे कि चाणक्य ने बोला था, चाणक्य ने क्या बोला था, चाणक्य ने बोला था, और जैसा कि चाणक्य ने बोला था, कोश मूलक दंड, क्या, कोश मूलक दंड, it states that the king shall not take taxes from only one type of revenue, which means if he takes from land, he does not take only from land, but he also takes takes it from for cattle and many other things, for military warfare and many other things. This is the thing that Chanakya told us. Now, these resources were used to finance the king's establishment, as well as for the construction of temples and forts. Anyways, इस टाइम में बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड हुए थे। ये भी आपको चैप्टर 5 और 6 में पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से हुए थे। Now, they were also fight they were they were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to exchange of wealth in form of plunder and to access land as well as trade routes. अब अगर आपने इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा, अपनी हिस्ट्री को ठीक से पढ़ा होगा, तो इंडिया के आसपास से बहुत ट्रेड रूट्स जाते थे, जैसे कि ये चाइना वाला जो रीजन है, यहाँ से ऐसे करके जाता था, यहाँ से ऐसे करके कौन सा रूट जाता था, इसे कहते हैं सिल्क रूट। कौन सा रूट? सिल्क रूट। अब सिल्क रूट को एक राजा ने कुछ देर कैप्चर कर रखा था। अभी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सा राजा था, और मैं ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इनफैक्ट वो कौन से उससे था, कौन सी डायनेस्टी से था, ये भी आपको बताना है। नाउ, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज क्या होती हैं? Contain detail may not be literally true, but they tell us how the rulers wanted to depict themselves as variant victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in administration. तो क्या बता रहा है हमें कि पढ़े लिखे ब्राह्मण ही से कंपोज करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। ये प्रशस्ति हुआ करती थी। प्रशस्ति क्या है? आप आप जब कहीं जाओगे, तो क्या होता है, पहले जमाने में क्या होता था, आप मान लो आप राजा हो, ठीक।
आपका एक मंत्री है, आपने उससे कहा कि मेरे बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखो, या तो उसने खुद से लिख दिया कुछ। वो एक वो एक कोरे पेपर पे क्या करेगा? कोरा पेपर समझते हो? ब्लैंक पेपर पे क्या करेगा कि वो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, और फिर आपको लाके दिखाएगा। लिख दिया, आप किंग को लाके दिखाया, या आप हो, या आपको लाके दिखाएगा, आप पढ़ोगे, आप उसे प्राइज दोगे। तो इसके लिए ये लोग करते थे, राजा से तारीफ पाने के लिए और ऐसी चीजें के लिए। अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। Many rulers describe their achievements in Prasasti. You must read about Prasasti of Samudragupta. Must have read. One Prasasti written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describes the exploitation of Nagabhatta, a Pratihara king. As तो ये है, इसमें क्या हुआ था? जो नागभट्टा था, ये ये एक प्रतिहार किंग था, जो इसने एक्सप्लॉइट्स किए थे उसके बारे में बताती है। द किंग ऑफ आंध्रा, सिंधावा, विदर्भा विदर्भा and Kaling fell before him even as he was a prince. He won a victory over Charayuddha. He defeated the king of Vanga and Arta, Malwa, Kirata, Turusha, Turks, Vatsya and Matsya, both kingdoms in North India. अब आप समझिए ये कितनी इस इस किंग की तारीफ कर रहे हैं। अब इससे इसमें से कुछ चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन सारी चीजें सही नहीं होंगी। This is what the historians tell us. What do historians tell us? That not all things of this are right. Now, moving on. King often rewarded Brahmins by granting land. These were recorded on copper plates, which were given to those who received the land. अब ये चीज है, ये कुछ टाइप की राइटिंग है। This is a set of copper plates recording the grant of land made by a ruler in 9th century, written partly in Sanskrit and partly in Tamil. The ring holding the plates together is secured with royal seal to indicate that this is an essential document. तो ये हमें बताता है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये तमिल सेक्शन है, अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट बाय द चोलास के बारे में ये है। ये इसमें ज़्यादा मैं नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। वैसे चोलास के ऊपर इसमें पूरा आधा पार्ट है इस चैप्टर का। Now, warfare for wealth. You may have noticed that each of this ruling dynasty was based in a specific area. At the same time, they tried to control their regions. One particularly prized area was city of Kannauj in गंगा वैली। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रिपार्टीट स्ट्रगल के बारे में, तो ये अभी वही बताएगा ये हमें बुक। For centuries, rulers belonging to गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पल्लव डायनेस्टी के जो राजा थे, उन लोग ने एक दूसरे से फाइट की। किसके लिए? टू टेक फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये तीन पार्टीज थी, तो इसे क्या कहा गया? इन दिस लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरियन डिस्क्राइब इट एज त्रिपार्टीट स्ट्रगल। क्या? त्रिपार्टीट struggle. Now, you will also see
Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attack once another kingdom, they often choose to target temples, which was extremely rich. अब temples क्योंकि rich थे, तो यहाँ क्या हुआ था, तो यहाँ बहुत सारे लूटपाट हुई थी बहुत ज्यादा। अब लूटपाट कैसे, तो आपको याद होगा अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे पता है बहुत लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये है नीचे भी दिया गया है, नीचे भी दिया गया है। मैं आपको वैसे भी बताने वाला था। वन ऑफ द बेस्ट नोन सल्स रूलर्स इज सुल्तान मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो था बेसिकली क्या था, मोहम्मद गजनी क्या था कि वो इतना, उसे अच्छा इतना रूलर नहीं माना जाता था। अफगानिस्तान का अच्छा रूलर उसे नहीं माना जाता है, तो लेकिन इसे चेंज करने के लिए he ruled from this much to this and extended control over parts of Central Asia, Iran, and northwestern parts of the subcontinent. He raided the continent almost every year. His targets were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. अब आप समझिए, इतने इस ईयर में, और फिर इस ईयर में इसका लास्ट अटैक हुआ था। और इसने जितनी बार अटैक किया, जितनी बार इसने अटैक किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बता दिया। इसने जितनी बार इंडिया पे अटैक किया था, क्या हुआ कि उतनी बार ये सोमनाथ गया, और सोमनाथ से उतनी उतनी ज्यादा इसने लूट ली। उस लूट से अपने कंट्री कंट्री में वेल्थ करता था। और फिर खुद को इसने क्या नाम दिया, तो खुद को इसने कहा हीरो ऑफ इस्लाम। Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at at Ghazni। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटल सिटी को क्रिएट स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी गजनी के लिए इसने यूज किया। नाउ नाउ he was interesting in finding more about the people he conquered and introduced a scholar named al-Biruni। अल अल-Biruni के बारे में आपने पढ़ा होगा तो याद है, आपने पढ़ा होगा कहीं, मुझे कमेंट्स में बताना आपने कहाँ पढ़ा है, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। To write an account of the subcontinent, there's Arabic work known as the Kitab al-Hind remains an important source of historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. Oops, I just hit the wrong button. Sorry guys, थोड़ी सी देरी हो जाएगी। Will this happen faster? Yeah, here we are. Now, moving on. सुल्तान का मतलब अब सबको पता होगा। Other kings who engaged in warfare included Chamans, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer। इनका एक्चुअल रूल जो था अजमेर पे था, लेकिन क्या हुआ कि फिर इनने अपना एम्पायर बढ़ा दिया थोड़ा, और फिर उसे दिल्ली पे शिफ्ट कर दिया अपना कैपिटल। तो ये हुआ था। उपसी they attempted to expand their control to the west and east, where they opposed by Chalukyas of Gujarat, Gadwals of western Uttar Pradesh, and best known Chaman ruler was Prithviraj III। पृथ्वीराज पृथ्वीराज ने 2 बैटल्स लड़ी थी मेन अपनी लाइफ की, दूसरी बैटल में मर गया,
1191 में उसने लड़ी थी बैटल ऑफ तरेन वन। कौन सी बैटल ऑफ तरेन? इसमें क्या हुआ था? द पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी, मोहम्मद अफगोरी। और और इसने क्या किया कि इसे इसे तब मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया और उसे जाने दिया वापस। फिर मोहम्मद गोरी अगले साल फिर मोहम्मद गोरी अगले साल एक बहुत बड़ी आर्मी लेके खड़ा हो गया, और फिर इसने मोहम्मद गोरी ने उसे हरा दिया फाइनली। और तब ये क्या किया कि अपना एक गुलाम छोड़ के, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये छोड़ के चला गया उसके। और फिर क्या हुआ? 1206 में 1206 में उसने अपने को आजाद कर लिया और फाउंडेशन की। कौन क्या किसकी फाउंडेशन की? दिल्ली सल्तनत की, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। और उसका पहला जो डायनेस्टी थी, उस वो उसमें का है, उसका फाउंडर है, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है। ये सब अपने आप को दिल्ली का सुल्तान कहते थे, और कुछ कुछ तो अपने आप को शैडो ऑफ गॉड भी कहते थे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब चोलास के बारे में ये चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट है। तो पहले तो क्या हुआ था क्या हुआ था कि इससे पहले कि इनका एम्पायर बना था, बहुत सारे राजा लोग थे। तो उनका जो था एरियाज बटा हुआ था। ये चोला जो थे बेसिकली यहाँ तंजावर वंजावर वाले रीजन में रहते थे, इधर इस रीजन में। फिर यहाँ यहाँ काकटिया थे, आंध्र प्रदेश में। यहाँ कलिंग राज्य था, वेंगी थे यहाँ। ऐसे करके इनका था। फिर क्या हुआ? फिर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुई। फिर फिर राजा राजा और राजेंद्र आए, तो उन्होंने एम्पायर की सीमा बढ़ाई। और राजेंद्र के टाइम तक आते आते क्या हुआ? जो बाउंड्री थी यहाँ पहुंच गई थी। और इनका जो राज हो गया था, कहाँ तक हो गया था? कन्नौज तक। कहाँ तक? कन्नौज। तो कन्नौज अभी मैप पे दिया नहीं हुआ है, मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ आपको कन्नौज दिखेगा। यहाँ तक इनका साम्राज्य था। और फिर डाउन साउथ में इन लोगों ने सोमालिया, माली वगैरह पे भी, बाली वगैरह पे भी कब्जा किया था। अब इसके इनके बारे में पढ़ना थोड़ा स्टार्ट करते हैं। राइज टू पावर कैसे आए? A minor chief family known as the Muttayar held the power in Kaveri Delta. They were subordinate of Pallava kings of Kanchipuram. Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of Chola from Urayur, captured the delta from क्या हुआ कि उरैयूर के जो चोलास थे, जो हमने एंशियंट इंडिया में पढ़े था, उनमें एक आदमी था, उनका एक वंशज था, बचा हुआ था। कौन था? विजयलया चोला। विजयलया चोला ने क्या किया? जो ये जो ये रीजन है, जो तंजावुर का रीजन है, जो बेसिकली जो रीजन है जो मत्तेयार के अंदर आता है, कावेरी डेल्टा वाला, वहाँ वहाँ पे इसने कैप्चर कर लिया वाला रीजन। यानी कि आपको मैप से समझाता हूँ, एक मिनट। हम्म क्या हुआ कि ये मान लो आपका मैप ऑफ इंडिया है, ठीक। ये आपकी कावेरी ना। यहाँ पे उस यहाँ पे यहाँ पे उसका कहीं एम्पायर था, या फिर यहाँ पे उसका कहीं एरिया था। अब यहाँ जो कावेरी डेल्टा वाला रीजन है, उसने क्या किया? उसने वहाँ कैप्चर कर लिया। तो उसने यहाँ से एम्पायर अपना स्ट्रेंथन किया, और फाइनली फाइनली जाकर यहाँ एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया इसके वंशजों ने। दैट इज नोन एज द चोला एम्पायर। और उस चोला एम्पायर ने लग उसने उसने इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइम काटा। किसने? चोला एम्पायर ने।
इसके बारे में पढ़ते हैं। चोलास के बारे में पढ़ते हैं ना। ही बिल्ड टाउन, एक मिनट। He built the town of Tanjavur and a temple of god Nishumbhini there. ये इनकी goddess थी। The successors of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. The Pandyan and Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. अब समझिए क्या हुआ? Now let's try understanding this. Now, what does this say? That successors, विजयलया के जो सक्सेसर्स थे, उन सब ने क्या किया कि आसपास के जो रीजन थे, जैसे कि मन की आंखों से देखना अभी, ठीक, आपको अभी मन की आंखों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको मन की आंखों की। तो ये आपका मैप ऑफ इंडिया है। अब एक मिनट, ये शेप गलत हो गया। ये आपका मैप ऑफ इंडिया है, ठीक। अब यहाँ जो इसने एम्पायर शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था? तो इस वाले रीजन में, कहाँ? समवेयर हियर। इसके सक्सेसर ने क्या किया, यहाँ तक बढ़ाया। फिर फिर इसके इसके पोते वगैरह आए, राजा राजा, उनने उसने क्या किया, तो उसने और बढ़ाया। कितना बढ़ाया उसने? उसने एम्पायर इतना बड़ा कर दिया। फिर राजेंद्र आया, राजेंद्र और खतरनाक था। राजेंद्र कन्नौज पहुंच गया, गंगाईकोंडा चोलापुरम बना दिया इसके चक्कर में, इस रीजन में। कहाँ? इस रीजन में। एक मिनट। तो जब गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया, तो उसके उसके बाद उसने साउथ में भी बहुत सारा कैप्चर किया, जैसे श्रीलंका किया, यानी कि इंडियन मैप के यहाँ कब्जा किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। सोमालिया इंडोनेशिया वगैरह भी हो गया था, वहां भी कैप्चर किया था। इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा कैप्चर किया। तो अभी मैं इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको ये चीज़ मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सब तैयार रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, वो पूरा चोलास के बारे में रहेगा। किसके बारे में? पूरा चोलास के बारे में। होप डू लाइक द सेशन, and if you please like this video, subscribe my channel, and I'll see you in my next video. Thank you and bye bye.